Teacher. Walaikum salam. How are you, teacher? I'm fine, teacher. Good. Beta, mute your mic. Umar. Umar, please mute your mic. Your camera and mic creating a problem, beta. Just let me know, beta, all of you are able to hear my voice clearly? Yes, teacher. Okay, beta. Just waiting for the student. I will start my lecture. Keep a worksheet pad and a pencil and pen along with you to note down your lecture. Umar, kindly mute your mic. Umar, kindly mute your mic, beta. Walaikum salam. आज बेसिक हुई Walaikum salam. How are you? फाइन मेरा कल भी नहीं आया वो तो मैं कल क्यों नहीं आई? Because beta, my internet was not working yesterday. That's why I was absent yesterday. Okay? आज 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 आप तो 1 आवर की क्लास लेनी है आपको Yes. लेकिन Now आप तो listen. 30 मिनट के लेंगे Okay, now listen, everyone. I'm going to share a screen with you, class, related to your lecture. So before starting the कंडक्टर lecture, एंड इंसुलेटर before starting the lecture, I will ask questions from my previous lecture for everyone. Okay. So let's start our topic. First of all, I would like to ask from Shamir. Yes, Shamir. Shamir. यस टीचर Shamir, just let me know, beta, what are conductors? conductors are the things that pass electricity and Hmm. and hot Okay, Aisha Ilyas. Aisha Ilyas. Yes, Aisha. Can you give 2 examples of conductors? metal Metal and all the metals are conductors. All the metals are conductors. Okay. Just give me one example more. iron Iron. Very good, Aisha. Okay. Is the insulator is a good conductor of electricity and bad conductor of electricity? Yes, Ayan. Ayan Ali Ahmed. Ali Ahmed. Yes, Ali. Are you able to hear me? what are you saying I am saying to you, beta, just let me know that insulators are good conductors and bad. Insulators bad can bad because they cannot pass electricity from it. Okay. yes Okay. yes Now come to the topic, beta. Today our topic is about what is electricity. What is electricity electricity? Okay, everyone. So आपने तो इसका क्विज होगा ये जो कंडक्टर और beta, from next अभी week I शेर will से पढ़ा start your. From next week, I will start your quiz from conductors and insulators. Okay. And just let me know, all of you have blown a balloon for an activity. Just show me the balloon. No one? No one has blown. No teacher, we do not have balloon. No one has blown a टीचर balloon. हमारे से इधर गई कोई टॉय शॉप है No one मैं भी has. खरीद के Okay, कोई लिया बात नहीं. Okay. ऑल ओवर Okay. द टॉय शॉप
Okay, no worries. सर हमारे Okay, यहाँ तो सारी चिट्ठी भी क्या क्या लेना है okay, no worries. If you don't have blow your balloon, इसमें हमें लाना क्या क्या है just a balloon and a टीचर paper. बैलून है Okay, just blow it. बैलून है पेपर Blow it. Okay, टीचर बैलून और and a paper. पेपर ओके Okay. टीचर Okay, now एक listen. मिनट We will do this activity later. We will do this टीचर कौन activity सा in पेपर सही है simple paper. Beta. Simple paper. Now listen. We will do this activity later. Means after before ending the class, we will do this activity. Now come to the lecture. Everyone, please come to the lecture. So, what is electricity? We need electricity for different purposes. As we all know very well that we need electricity for different purposes. Okay? For lighting up a bulb, for lighting up a bulb, we need electricity. Okay? For charging a mobile phone, we need electricity. To charging a system and laptop, you have to need electricity, etc. We need electricity for so many purposes. But we don't know, before understanding the electricity, we should have to know about that what is an atom. Before before it comes to the electricity, we should have to know about it that what is an atom. Okay, now listen carefully everyone, because electricity totally depends on atom. Now what is an atom? Atoms are the building blocks of ordinary matter. Matter, what is matter? Anything. What is matter? Anything which occupy space and has a volume. Anything which occupy space and has a volume is called matter. ये कोई भी चीज जो आपके पास स्पेस ऑक्युपाई करे और उसका वॉल्यूम हो, वो क्या कहलाती है? मैटर. ओके, और जितने भी हमारे पास मैटर है, all the matters are consist of atom. Atom is the smallest particle. You can't see atom with your naked eyes. You can't see atom with your naked eyes. आपको atom कभी भी नहीं दिखेगा. You can't see the atom because it's too tiny smallest particle. You can't see the atom. So many atoms combine together. So many atoms combine together to form a molecule. But we don't need to molecule in this topic. Okay. Now atoms can join to form molecules, which is tend form most of the objects around you. हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें, like a fan, like a table, like a chair, like a mobile phone, like a computer. Okay, we have so many examples which are made up of matter, and all the matter are composed of atom. आपके पास जितने भी मैटर्स हैं उनमें क्या अवेलेबल है? एटम्स अवेलेबल है. ठीक है, और ये तमाम एटम्स जब आपस में ज्वाइन होते हैं, when all these atoms are combined to each other, they form a molecules. Okay, now come to the picture of atom. Look, this is the structure of atom. This is the structure of atom. Yes, Fahad. Yes, Fahad. सर Hmm. लेट्स आई हैव टेक Okay, a good. बैलून Blow it later. Before ending the session, blow it later. जब सेशन एंड होने वाला होगा, आप इसको ब्लो कर लीजिएगा. ठीक है बेटा? टीचर ना करना क्या है बेटा मैं बताऊंगी ना आपको बाद में. आई विल टेल यू लेटर ना. ओके टीचर Just listen the lecture. Okay. Now look at the structure of atom. What? Atom composed of three particles. Atom have composed of three particles. Atoms के three particles होते हैं. First is electron, second is proton, and third is neutron. Look at the picture. Look at the picture, everyone. Atoms are composed of three particles. कितने particles हैं? Three particles. Note down your lecture. How many particles are atom have? Three particles. Maybe I will ask this question in your quiz that how many particles are atom have. So you have to write there how many particles are atom have? Three particles. Proton, electron, and neutron. And in the center of atom, look at the center. Blue and red bubbles. Look at the blue and red bubbles. In the center of atom, we have a nucleus. What? Nucleus.
न्यूक्लियस ऐसा है जैसे कि आपके पास आपका ब्रेन है, जस्ट लाइक योर ब्रेन, जस्ट लाइक योर ब्रेन, योर ब्रेन कंट्रोल्स ऑल योर एक्टिविटीज। हम जो भी काम कर रहे होते हैं हमारा ब्रेन उसको कंट्रोल कर रहा होता है, जस्ट लाइक दैट न्यूक्लियस ऐसे ही काम करता है, एटम की सारी एक्टिविटीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है। दे कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द एटम। न्यूक्लियस वर्क्स लाइक ब्रेन, जैसा आपका ब्रेन काम कर रहा है जस्ट न्यूक्लियस बिल्कुल ऐसे ही काम कर रहा है। ठीक है, नाउ come to the next slide. Look at the picture carefully. Electrons, protons and neutrons. एनीथिंग आपने देखा होगा अक्सर बैटरीज, जो हम लोग मार्केट से बैटरीज लेकर आते हैं उसके ऊपर दो चार्जेस होते हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है नेगेटिव चार्ज। हैव यू एवर सीन दिस? शामिर, हैव यू एवर सीन दिस? हैव यू एवर ब्रॉट अ बैटरी फ्रॉम मार्केट? आपके घर में भी हमारे जनरेटर है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, आपने देखा होगा उनके ऊपर दो चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। each electron has two charges for each particle। मतलब आपके एटम के जितने भी पार्टिकल्स हैं, कौन कौन से पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। These three particles have two charges, positive or negative. How many charges are there? Positive and negative. We all know very well that positive charges repel each other at एक same charges। मतलब हमें आपके पता है ना, ऑलवेज अपोजिट चार्जेस, अपोजिट जो भी चीज होगी दूसरे को अट्रैक्ट करेगी, लेकिन सेम चीज कभी दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करती। ठीक है, जस्ट लाइक दैट इफ वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस so they will attract each other, but we have same charges like positive positive, negative negative, so they do not attract with each other, they repel each other। ये दूसरे को धक्का देंगे, ये दूसरे को धक्का देंगे because they have no ability to attract with each other because they have same charges, that's why they never attract with each other। Okay, note down this. Atoms are composed of particles, as I explained you, called protons, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स में कौन सा पार्टिकल होता है ये बात नोट डाउन कीजिएगा सब। प्रोटॉन हैव अ पॉजिटिव चार्ज। व्हाट चार्ज ऑफ प्रोटॉन हैव? प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। ओके, प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। चार्ज यानी कि आपके पास जो आइंस होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, एज आई शोड यू इन पिक्चर। शामिल बेटा नोट डाउन योर लेक्चर। Electrons have negative charge and neutrons have no charge। Neutrons पे कोई चार्ज नहीं होता, they are neutral। Neutrons are neutral, they have no charge, they have no charge। ना इसके ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज होता है ना इसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता है। ओके, protons have positive charge and electrons have negative charge and neutrons have no charge। इलेक्ट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता, विच इज कॉल्ड न्यूट्रल। क्या कहते हैं उसको? न्यूट्रल। वो न्यूट्रल होता है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ओके, in the center of the atom, as I told you that in the center of the atom we have a nucleus। in the center of the atom we had a nucleus। okay, we had a nucleus in the center of the atom, as I showed you in picture। As I showed you in picture that in the center of the atom we had a nucleus and the nucleus works like a brain। जैसे कि आपका ब्रेन काम करता है ऐसे ही न्यूक्लियस काम करता है। ठीक है, ओके एवरीवन। नाउ यस शामिल। टीचर आप नोट खोल देंगे क्योंकि टीचर उससे स्क्रीनशॉट ले लिया जाता है। अभी कुछ बच्चे जो है ना उसके ऊपर मार्क कर रहे होते हैं तो वो स्क्रीन गंदी हो जाती है। ठीक है, you can take a screenshot at the last of the session। ठीक है, I will open। now listen everybody, come to the next slide। what is electricity? Electricity is a form of energy and flow of electrons। मीन्स आप देखिए पिक्चर में क्या हो रहा है, हमारे पास एक बैटरी है, आई हैव अ बैटरी, अ वायर एंड अ लाइट बल्ब। क्या हुआ, आपने जैसी बैटरी के साथ एक वायर को अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया। ठीक, इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू फ्लो, एज द इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स टू फ्लो द बल्ब लाइट्स अप। ओके,
So means what is the energy? Electricity is the flow of electron. मतलब इलेक्ट्रॉन एटम्स के गिर्द रिवॉल्व करते हैं, घूमते रहते हैं. जो हमारे पास एटम है, मैं आपको फिर से एटम का स्ट्रक्चर शो करती हूँ. लुक एट द स्ट्रक्चर. Look at the structure over here. Yeah, look at the structure over here. The electrons revolve around the atom. देखिए इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं. ये ब्लैक पार्ट जो है इलेक्ट्रॉन है, और ये पूरे एटम के गिर्द क्या कर रहे हैं? रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं. मींस ये क्या शो कर रहे हैं? फ्लो शो कर रहे हैं. दिस इज द इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, एज आई शोन इन पिक्चर व्हाट द इलेक्ट्रॉन इज डूइंग. इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग. रिवॉल्विंग का मतलब घूमना. ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहा है एटम के गिर्द. मींस एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. नाउ लुक एट द पिक्चर अगेन. Now look at the paper over. Okay, now look at the picture again. Now what is going on? As I told you that electricity is the flow of energy, form of energy, यानी कि एनर्जी की एक फॉर्म है. ठीक है, एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. एज आई टोल्ड यू बिफोर इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्या हुआ जब आपने एक बैटरी के साथ एक वायर को अटैच किया तो क्या हुआ? जैसे आपने उसको अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर दिया. जैसे इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू किया तो क्या हुआ? उससे बल्ब फ्लो कर दिया. ठीक है, लुक एट द अदर पिक्चर. When two different charges attract each other, they form a energy. मीन्स ये आपको एनर्जी की पिक्चर शो कर रहा है. एनर्जी प्रोड्यूस होती है या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है जब टू डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर. मीन्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव को जब आपस में आप कंबाइन करोगे तो दे विल फॉर्म अ इलेक्ट्रिसिटी एंड एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑल्सो. ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. वी हैव टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, static electricity and current electricity. How many types? Static electricity and current electricity. Note down the types of electricity. Now come to the next slide. Static and current, you can see the differentiate between static and current electricity. Static, आपके पास स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्या होगा? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्रिक्शन. जब आप अपने हैंड्स को रब करते हैं आपस में, रब योर हैंड, रब्स योर हैंड ईच अदर. अपने हैंड्स को रब कीजिए. यस शामीर, फहाद, अपने हैंड्स को आपस में रब कीजिए तो क्या प्रोड्यूस होगा? हीट प्रोड्यूस हो रही है. डू यू फील हीट? एवरीवन इज फीलिंग हीट. हैव यू एवर आर यू फीलिंग हीट? का मतलब क्या है? क्या प्रोड्यूस हो रही है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है. क्या प्रोड्यूस हो रही है? फ्रिक्शन. ठीक है, ठीक है, फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके पास जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसेस फ्रिक्शन. क्या प्रोड्यूस करती है? फ्रिक्शन प्रोड्यूस करती है. एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बिल्ड अप इन वन लोकेशन. मींस चार्जेस एक ही जगह पर फिक्स रहते हैं. दे डू नॉट मूव. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस फ्लो नहीं करते. दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी. इन स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस विल नॉट फ्लो. चार्जेस विल नॉट फ्लो. चार्जेस फ्लो नहीं करते. मीन इलेक्ट्रॉन्स क्या नहीं करते? फ्लो नहीं करते. ठीक है, एंड इन करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स विल मूव. इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? मूव करेंगे. देखिए क्या हुआ, आपके पास बैटरी है. बैटरी को जैसे ही आपने वायर के साथ अटैच किया तो इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लो करना शुरू कर. देखिए इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. लुक एट द एरोस. लुक एट द एरोस एवरीवेयर. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन्स जैसे फ्लो करेंगे बल्ब विल ग्लो अप. ठीक है, but in static electricity charges will stay at one place only. They will not flow. देख लीजिए एक बलून है. बलून में आप देखिएगा आपके पास चार्जेस एक ही जगह पे स्टिक है. दे आर नॉट शोइंग एरोस एंड दे आर नॉट फ्लो. ओके, नाउ नेक्स्ट अगेन look at the picture. Static electricity, when you rub a balloon on your head. जब आप अपने हेयर्स पे एक बलून, ग्लोइंग बलून को रब करोगे तो व्हाट विल हैपन? क्या होगा? क्या होगा?
और आप उस फ्लोइंग बलून को उस पेपर के ऊपर जब लेकर जाओगे तो आप देखिएगा द बलून विल स्टिक इनटू द पेपर, वो बलून उसके ऊपर स्टिक, उसकी जो अट्रैक्ट होगा, क्यों? बिकॉज नेगेटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड ईच अदर, क्योंकि क्या इलेक्ट्रॉन्स पे मे बी बलून के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और पेपर के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, ओके, एंड मे बी योर हेयर्स हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड बलून हैव अ नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही whenever you rub your balloon, rub a balloon on your hands, so what will happen? Your balloon will stick to the paper because negative and positive always attract with each other. Okay. Now in the other picture, there is a picture of current. Dynamic is also called current electricity. What will happen over here? When you attach a battery with a wire, so what will happen? Electron starts to flow and a bulb will glow. Okay? So again I am telling you the basic difference between static electricity and current electricity. In static electricity, charges will not flow. Electrons will not flow. Electrons flow नहीं करते, ठीक है? And in current electricity, electrons will flow. Electrons क्या करते हैं? Flow करते हैं, ठीक है? So this is the basic difference between static electricity and current electricity. Okay? Now, टीचर इसमें तो डायनेमिक लिखा हुआ है। dynamic is also called current electricity. Okay? Now, have you ever rubbed a balloon against your clothes? कभी आपने अपने अपने क्लोज के ऊपर बलून्स को रब किया है? लुक एट द पिक्चर ओवर हियर, लुक एट द पिक्चर ओवर हियर। आप अपने अपने क्लोज पर बलून को जो आप रब करेंगे तो व्हाट विल हैपन? क्लोज योर क्लोज हैव पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बोथ and your balloon have positive negative charges below both, but when you rub each other, so what will happen? The balloon will start with attract each other. balloon क्या कर देगा? attract करना start कर देगा। आप किसी भी चीज के जब उस balloon को लेके जाओगे, whenever you take in any place, अगर आप किसी water के करीब लेके जाओगे ना उस balloon को, तो आप देखिएगा water जो है वो attract करेगा उस balloon की तरफ। why? because the negative charges attract with each other, because negative charges को attract करेंगे। अब हम एक छोटी सी एक्टिविटी कर लें ताकि हमारा ये कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है? अगेन एक पिक्चर देखिएगा, अपोजिट चार्जेस आप अट्रैक्ट करें दूसरे को, देख लीजिए पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट विद ईच अदर, ठीक है? नाउ क्या करेंगे आप लोग? बलून लीजिए। अच्छा आप लोग मुझे बताइए, आप लोग को स्क्रीन शेयर करनी आती है ना? एवरीवन नोज हाउ टू शेयर स्क्रीन? जस्ट वेट, Why not? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। Okay, just wait. अच्छा क्लास आप लोग क्या कीजिए, टेक अ बलून एवरीवन, जिसके पास बलून है वो बलून लीजिए और जिनके पास नहीं है वो एक एक्टिविटी को वीडियो में देख लीजिएगा बाद में, ठीक है? टेक अ बलून, बिकॉज राइट नाउ आई डोंट हैव अ बलून, सो हम मंडे को ये एक्टिविटी फिर से रिपीट कर लेंगे आप लोगों के लिए, ठीक है? जिनके पास बलून है वो बलून लीजिए, टेक अ बलून एंड ब्लोइंग बलून, टेक अ ब्लोइंग बलून एंड रब योर बलून ऑन योर हेयर। अपने बलून अपने हेयर्स पे बलून इतना मत जोर से रब कीजिएगा कि बलून जो है फट जाए, ठीक है? मैं आप लोगों के माइक अनम्यूट कर रही हूँ, अपने माइक अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट लेट मी नो हाउ मेनी। कोई सा भी कलर ले ले। टीचर ऐसा बैलून? Yes beta, you can take any color of balloon, there is no requirement of color. I take blue. मेरा बेटा, you can take any color of balloon, टीचर ये सही है। any color. Okay, now what will happen? Now what will happen? What? Rub your balloon on your hair. आप उस बलून को लीजिए और अपने हेयर्स पे रब कीजिए, ठीक है? टीचर पहले इसको ब्लो कर ले। हाँ पहले ब्लो कर लीजिए, फर्स्ट ब्लो योर बलून।
ओके एवरीवन ब्लो योर बलून जस्ट लेट मी नो। जब आप लोग ब्लो कर लें तो मुझे अलावा बताइएगा आप लोगों ने कर लिया, ठीक है? टीचर इतना सही है। इतना ब्लो बस थोड़ा ब्लो कर लीजिए टीचर अब थोड़ा। Yes. Aisha, Elias, you don't have balloon? Okay. So do it activity later at your home to just clear the concept of पता नहीं आज ज्यादा लोगों की आवाजें बंद है, माइक खुला हुआ है, आवाजें बंद है ज्यादा लोगों की। who is मैंने आज speaking? क्या हुआ? Who is speaking? इतना जोर से बुला दे। इट्स ओके। इतना जोर से आप लोगों ने ब्लो नहीं करना है कि वो फट जाए, इतना नहीं करना है। हाँ इट्स फाइन, इट्स फाइन, गुड। अब क्या करें, उसको हल्के से अपने हेयर्स पे रब कीजिए। स्टार्ट रबिंग ऑन योर हेयर्स, स्टार्ट रबिंग बलून्स ऑन योर हेयर्स, स्टार्ट रबिंग बलून्स ऑन योर हेयर्स। हरी अप। टीचर मेरा तो फट गया। कोई बात नहीं, do it later. Do it later. I will repeat the activity on Monday, inshallah. So don't worry about it. Okay? अच्छा, अब उसके बाद रब कीजिए अपने हेयर्स पे, अच्छे से रब कीजिए। रब करने के बाद उस बलून को पेपर के करीब लेके जाइए और देखिए कि वो बलून आपकी पेपर की तरफ बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा। पहले रब कीजिए। स्टार्ट रबिंग बलून ऑन योर हेयर्स। ओके? टीचर फट ना जाए। नहीं, इतनी जोर से नहीं करना है ना बेटा, स्लोली 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 slowly rub the balloons on your hair and start rubbing. Okay? Now place your balloon near to the paper. Now place your balloon near to the paper and see it will attract or not. Not possible, Fahad. Again rub कीजिए. Yes, teacher, it will attract. टीचर देखता हूँ। Okay, again rub कीजिए. समीर, आपने किया ऐसा? टीचर मेरा तो फट ही गया। आप यार जोर से आप लोग, इतनी जोर से आप लोग रब करोगे तो मेरा बच्चा को फट जाएगा ना। मैंने आप लोगों से स्लोली कीजिए, स्लोली रब बलून्स ऑन योर हेयर। लैपटॉप चिपक गया, देखिए लैपटॉप ऊपर जा रहा है। ग्रेविटी बच्चों की चीज नहीं है। यार बैलून पे पेपर लगा के पेपर पर चिपका के पेपर पर लगा देते हैं। हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। Now just let me know, don't you see balloon? Now just let me know. Okay, I'm going to unmute the mic of Fahad. आप बहुत जोर से चीखने लग रहा है, फहद का बलून स्टिक हो गया। यस फहद। नहीं हो रहा। इट्स नॉट पॉसिबल फहद। किरत ने मुझे कहा किरत का हो गया। यस किरत। टीचर दूसरा बैलून लेके देखो। एक ही बलून से हो जाएगा बेटा, डू नॉट नीड टू ब्रिंग मोर बलून्स, इट्स नॉट अ बर्थडे पार्टी। टीचर नहीं हो रहा। हाँ किरत, आपने किया राइट नाउ। तुमने कैसे करा? Right now, how many students are having a balloon? टीचर अट्रैक्ट हो रहा है। अट्रैक्ट हो रहा है। अच्छा देखिए, ये अट्रैक्ट होगा, ठीक है। आप जोर से मत रब कीजिएगा, रब करते रहिएगा, फिर करीब पेपर के करीब लेके जाएगा। फिर से करीब रब कीजिएगा, फिर से पेपर के करीब लेके जाएगा। So what will you observe? That the electrons flow, that the positive charges attract with each other. ठीक है? यानी कि means your hair. हमारा भी सर्किट वाला काम हो गया क्या? Sorry? सर्किट वाला हाँ होगा आप लोग का। मे बी आई विल परफॉर्म अदर एक्टिविटी ऑफ सर्किट, तो ये आप लोग को मैं कंफर्म कर दूंगी सैटरडे तक। हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट, इट विल हैपन। आप लोग बाबर रख के बाबर देखिएगा, होगा, इट विल डेफिनेटली हैपन। ठीक है, हम ये मंडे एक्टिविटी फिर से करेंगे एंड ऑल स्टूडेंट्स विल ब्रिंग अ बलून एंड अ पेपर अलोंग विद यू। ओके, कब एक्टिविटी करेंगे?
On Monday, I will repeat this activity. All students will bring a balloon and paper along with you. मैं खुद से करूंगी आप लोगों के सामने, उसके बाद हम फिर से एक्टिविटी करेंगे, ठीक है? नाउ ओपन वर्कशीट. यस. ये मैं एक्टिविटी कब करेंगे वैसे? On Monday. On Monday. Coming Monday. Okay? मंडे को तो हमारा बैच पास ही है. तो बेटा मेरा बेटा मैं साइंस के ब्लॉक में करूंगी ना बेटा, अभी टाइम है. Now come to the worksheet page number 12. Hurry up. Worksheet page number 12 पे आ जाइए. Hurry up. Worksheet बाहर. Worksheet page number 12. ओके टीचर आ गया. ओके. Here are आप लोग एक पैराग्राफ गिवन है. इस पैराग्राफ को मैं टोटली आप लोग एक्सप्लेन कर चुकी हूँ विद द हेल्प ऑफ माय लेक्चर, ठीक है? इस पैराग्राफ को आप थॉरली एक बार रीड कीजिएगा. Here are some questions. आपके पास में कुछ क्वेश्चंस गिवन है. And now look at the questions. What are the two materials that are good conductors of electricity? ठीक है, मैंने आप लोग को बहुत सारी एग्जांपल्स बताई थी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर्स की. मेटल्स, कॉपर, आयरन. Listen everyone and just unmute yourself. Everyone. Just listen to me carefully. इसके बाद मैं आप लोगों का माइक अनम्यूट करूँगी. Listen to me carefully. Here are few questions. 5 questions over here. Question number 1 is about what are the two materials that are good conductors of electricity. ठीक है, read the paragraph thoroughly because मैं आप लोगों को ये पैराग्राफ अच्छी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ with the help of. If you are having query, आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो you can ask me because पैराग्राफ में वही सब कुछ लिखा हुआ है जो आप लोगों को लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? So find out your answer with the help of this paragraph. Write down the name of two conductors which are good, ठीक है, which are good in electricity. इस पैराग्राफ का आप लोग इजीली आंसर मिल जाएगा. Here are the few examples of conductors, so you can write down the answers over here. For example, iron, copper, steel, ठीक है? How is static electricity different from current electricity? क्या डिफरेंस बताया था मैंने आप लोगों को? यस, कौन बताएगा? जल्दी से बताइए. शामिर बताएंगे मुझे. शामिर, यस, क्या डिफरेंस बताया था मैंने स्टैटिक और करंट का? जल्दी बताइए जल्दी. हरी अप. आयशा, कौन बताएगा? जल्दी. इसलिए बेटा आप लोगों से कहते हैं कि लेक्चर गौर से सुना करें और पॉइंट्स को नोट डाउन किया करें. यस, हु विल टेल? इफ एनीवन वांट्स टू टेल जस्ट रेज योर हैंड. अनम्यूट कर दिया मैंने आप लोगों को. जल्दी से बताइए कौन बताएगा? यस, हु विल टेल? I told you that the basic difference between टीचर आप दोबारा पूछे अपना क्वेश्चन. the basic difference between static electricity and electric current is static. The particles of static electricity वो एक जगह फिक्स होते हैं, वो फ्लो नहीं करते हैं. और इन करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्टिकल्स विल फ्लो. बताया था आप लोगों को, अब पिक्चर भी शो गई थी. ओके, ये 1 घंटे की क्लास होगी क्या? नाउ नो बेटा, आप 5 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगी. Now again look at the picture. I'm sharing a screen with you. In question number 2, you will write the basic difference between static and current electricity as I showed you in picture before. Okay. Now, what could happen if the rubber coating on a power cord is damaged? अगर हमारे पास एक पावर कोड है, उसके ऊपर जो रबर की कोटिंग हुई होती है वो डैमेज हो जाए, तो मुझे बताइए क्या होगा? करंट प्रोड्यूस होगा? करंट लगेगा? नहीं लगेगा? आपको नहीं लगेगा, बिकॉज वो जो रबर की कोटिंग है वो आपको सपोर्ट दे रही है, वो इंसुलेटर है. ओके, और अगर आप उस इंसुलेटर को रिमूव कर दो या वो डैमेज हो जाएगा तो इट विल प्रोड्यूस अ करंट. करंट तो प्रोड्यूस कर, लेकिन वो इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस कर सकता है. ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक शॉक प्रोड्यूस कर सकता है अगर वो रबर कोट डैमेज हो जाए किसी पावर कोड का. ठीक है, इज वाटर अ कंडक्टर इंसुलेटर? यस, कौन बताएगा? ये मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में एक्सप्लेन किया था. वाटर Teacher, it was conductor. Yes, water is a good conductor. Okay, now in your own words, now come to the question number 5. In your own words, explain the difference between conductor and insulator.
आप लोगों ने अपने ओन वर्ड्स में इंसुलेटर एंड कंडक्टर का क्या बताना है, डिफरेंस बताना है. ओके, बेसिक डिफरेंस दे दीजिएगा. आप लोगों को बहुत सारे डिफरेंस बताए हुए हैं कंडक्टर और इंसुलेटर के. Yes. So write any one difference about conductor and insulator. Okay, everyone. So the time is now. If you have any queries regarding your lecture, your worksheet, so you can ask me. No. We have 4 minutes right now. So you don't The have time any. is up, teacher. Okay, now listen. On Monday we will repeat our activity. जो अभी आज किसी वजह से हो नहीं सकी है, ठीक है. हम अपनी एक्टिविटी रिपीट करेंगे और उसके बाद लाइव परफॉर्म करूँगी. मैं आप लोगों के सामने भी करके दिखाऊंगी. फिर आप देखिएगा कि वो परफॉर्म एक्टिविटी वो हो रही है या नहीं हो रही है, ठीक है. So everyone will take a ballooning balloon and paper along with you for an activity. Okay class? Okay, miss. और ये जो अभी आप लोगों को वर्कशीट शो करवाई है, it will be your homework and I will upload your homework on university also, so you can check your homework from university. Okay everyone? Okay. So take care of yourself, Okay, class. teacher. Allah Hafiz. See you soon on Monday. Allah Hafiz everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz.